Okay, so today we are going to start with a very important discussion on written ability test. Okay, so it has become one of the important part of your selection procedure of any entrance that you are going for. Okay, so right now you might be targeting for symbiosis, or in coming days you might be preparing for your write-ups, for your assignments. Okay, so everywhere written ability is going to be an important part. Now, when I interact with students, it's been 10, 12 years that I'm taking these kind of sessions. So whenever I interact with students, a common feedback that I got from them is, मैम राइटिंग इजी है, मतलब बोलने के लिए मत बोलो, लिखने के लिए कितना भी लिख लेंगे. But believe me, friends, after today's session, the rules that I'm going to discuss are basically not talking about the rules, the skills which a particular exam is looking in you. If you're going to understand that, automatically your understanding is going to get shifted. Okay, I'll tell you a simple reason behind it. Because कैसा होता है, once if we speak something, कुछ error हो जाता है, then it got nullified. Because according to the like psychological study, ये बोला गया है कि whatever we speak, the person who is listening to you is listening only 20 to 30% of what you are saying. That means they are just extracting the keywords and they are just building the idea as per what the speaker is trying to tell you. But in writing skills, it it go other way around, right? So in writing skills, each and everything is being checked, whether it is your spelling, whether it is your grammatical error, whether it is a punctuation, a small punctuation. So everything makes a difference, right? So that is why writing is bit difficult as compared to speaking, is a general overview of any speaker per se. Okay, it's not my opinion, but it is a general opinion. So now today, rather than giving you more ज्ञान into it कि क्या करना है, कैसे करना है, ये ज्ञान तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा, समझा भी होगा, ठीक है? Today we are going to do some practice sessions. My purpose of taking this session is very very clear कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि करना कैसे है, right? So what needs to be done and how it needs to be done, okay, or how to do it from your point of view. Then from there we are again going to start with like कि writing skills को अगर improve करना है तो from where I should start and what are the improvements that I need. ठीक है, so this is how the session will move on, and I have found few interesting exercises for you जिसमें थोड़ा सा आप अपने writing skills को भी check कर पाएंगे, because ड्यू टू दिस ऑनलाइन सेशन इट हैज बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक एक के पेज में जाके एंड आई जस्ट सी कि व्हाट दे हैव रिटन. बिकॉज ऑफलाइन क्लास में यूजुअली ये होता था दैट आई यूज्ड टू give a topic to the students and they used to write it and I go to each and individual and just check कि आप क्या लिख रहे हो. ठीक है, तो ऑनलाइन में of course we have a very good option available with us, that is the chat box. So in the chat box, you will be writing the words which I am expecting from you. So we are going to start with an exercise. Are you all ready? Yes, ma'am. Okay, if you are hesitate in speaking yes or no, you can write it in the chat box. Yes, ma'am. Fine. So I got yes from most of you. Fine. So let's start with a very simple exercise. Let's say if I say you or if I tell you to write or to describe about yourself. So I only need 5 keywords that describes you. Okay, so I'm not looking for an entire paragraph on it. I am just looking for 5 words that is going to describe you. Okay, don't Google it out क्योंकि Google अपने words देगा, वो आपका description नहीं बताएगा. So be honest to yourself and start writing about yourself. Only 5 words. Okay, my purpose of giving you so much time was that there are still few students who have not written anything in the chat box.
सो या तो उनको सिर्फ ज्ञान सुनना है आज के लिए, दे आर नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड कि वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लें, या फिर ये है कि हमको कोई कुछ भी बोले, हमको वही करना है जो हम चाहते हैं, ठीक है। सो आई एम इग्नोरिंग दो स्टूडेंट्स एंड आई एम जस्ट फोकसिंग कि जिन्होंने आंसर्स दिए हैं, दोज हु हैव ट्राइड। सी बिलीव मी फ्रेंड्स, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद राइट डाउन नहीं करोगे, इन द एग्जामिनेशन नोबडी इज गोइंग टू डू फॉर यू, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, सो देन आई थिंक द डी डे इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको क्या आता है, ठीक है। बट आई होप फॉर द बेस्ट कि आप अच्छा ही लिखेंगे। Fine. So there is a common word which I come across in almost everybody's and that common word is hard working, है ना। ये hard working हो गया, patience हो गया. So these are the few words जो हमको बचपन से एकदम जहन में बैठे हैं. And the moment if anybody is asking you to describe us, ये दो words तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं, है ना. So now my point over here is that everybody is hardworking, no doubt in that, because without hard work, you cannot reach to a... Am I not audible? Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Neha wrote that you are not audible. That is why I am just confirming. Okay, Ishan, do you have any doubt? Beta, you raised your hand. No, ma'am. Okay, fine. No problem. So by mistake, it might have been done. Fine. So hardworking हो गया, patience हो गया, ठीक है, friendly हो गया. Then ये कुछ ऐसे words हैं जो बहुत ही common है, जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं, right? So now at this point in time, when you are supposed to write in a more formal way, ठीक है. So now writing is going to become more formal when you are actually going to go for written ability test, ठीक है. तो formal way में what we have to start doing is we have to start identifying the synonyms of these words, right? So hardworking की जगह next time I can use diligent, okay. And in spite of writing patience, that I'm a very patience, I'm carrying a patience. So instead of that, I can write forbearance. I think some of you have written this also. Just to name the person, let me just go through the chat box. Okay, Shivani has written this word forbearance. So this is how you have to improve your vocabulary. Okay, so for writing skills, the most important part is your vocabulary. So whenever you have to write something, the first word or the first thing that should come in your mind is that what are the vocabularies that you're going to use during that writing. Okay, so that was a just simple exercise that I have made you to write, टू अंडरस्टैंड कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच रहे हैं, कितने सिनोनिम्स हमको पता है, एंड हाउ डिफरेंटली वी कैन पोर्ट्रे एज कंपेयर टू अदर्स. ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू अ पैराग्राफ राइटिंग और व्हेन इट कम्स टू अ एसे राइटिंग, एज यू ऑल नो देयर आर गोइंग टू बी अ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है. कई बार ऐसा होगा कि जो चीज आपने इंट्रो में लिखा है शुरू में, वही चीज आप फिर से रिपीट कर रहे हो इन दी मेन कंटेंट, इन दी टेक्स्ट, राइट. तो उस कंडीशन में आपके पास डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे, देन इट इज गोइंग टू ऐड a difference in your writing. Okay, now there are few students whom I can just see that you have written few of your words that indicate your negative personality also. Negative in the sense you are talking about your weaknesses. So this is my sincere request, because these kind of questions are going to be asked when you will be sitting for your interview. Okay, so the next process after written ability test is definitely going to be your interview skills. So in interview, interviewer may ask you to write down your skill sets, or he may ask you to talk about your skills, okay, and how you are different than other candidate. So in that you have to talk about your skills, and in skills if you are talking about your weaknesses, somewhere it is going to give a negative impression to the interviewer. तो ये सब चीजों को हमको ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी ना आए. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू ऑफ यू हैव रिटन दैट आई एम क्लमजी,
then I'm weird. ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको भी पता है कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को इंडिकेट करते हैं. इफ यू से आई एम introvert again, if you are taking a profession where you have to be outspoken or you have to be a good communicator, in that case if you say that I'm introvert and I speak very less or I don't mingle up much with people, then that is again going to give a negative impression to the interviewer. Okay, so this is how you have to start working on your words. I can understand everybody has their strong areas, have their weak areas. So it's always better to hide our weak areas until and unless it is not been asked by a person. Okay, so this is how we can improve our written by improving the vocabulary. Fine. Okay, Ishan wrote that I can easily cope up with others. So despite of writing a long sentence, you can simply say that I'm adaptive or I'm more energetic with people. Okay, this is how you can replace your words. So I hope I'm clear on this, that choosing a vocabulary is again going to make difference when you're writing. Yes. Okay, so now let's move on to the next exercise, wherein like we have started with selection of the keywords, selection of the words that we have to improve in our writing. Now next is when we are actually working on our writing skills. Everybody tell us to write essay, and that we might have done in our school days. Most of us have done it, but then during school days, as we all know, the topics were little kiddish, and then we were allowed to express our emotions, right? And now since the level where you have reached, here your writing should be more formal and it should not include your emotions. Okay, so these are things we have to remember while writing. So for that, we will start with understanding that how to write a paragraph. Okay, so once you start understanding that how to build a paragraph, how to write a effective paragraph, I think automatically you are going to move towards the essay writing. Okay, so this is how we are going to move today, because most of you will be asked to write essays इन योर राइटिंग स्किल्स. ठीक है, तो बिफोर आई मूव ऑन टू द एक्चुअल ऐसे की टॉपिक्स कैसे रहेंगे, क्या क्या उसमें एक्सपेक्टेड है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ये सब चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगी. बट देन बिफोर दैट वी जस्ट अंडरस्टैंड कि एक इफेक्टिव पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है. सो द टॉपिक फॉर द इफेक्टिव पैराग्राफ इज अ फेवरेट डे ऑफ द वीक. Ma'am, we have to write on this. Yes, you have to write a small para on this. I'll just type it in the chat box so that it will be visible to everyone that what exactly you have to do. So the topic is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so start writing. Yes, Shawnki, you have to write it in the chat box, because as you are aware, you have to type on the screen when you will be sitting for the actual written ability test. Okay, so this is a small exercise that we are doing over here, just to see that how good you are with your typing speed and what are your thought process and how you are delivering it. I'm giving you 5 minutes time to write about this topic, and I think this is not a very difficult topic for you before we move on to the actual topics. Okay, so I have started getting answers and I'm replying to all the students with their individual feedbacks. Okay, so that the session is going to get smoother
And when I'm going to come to actual essay discussion, you will be in a mind frame that how you have to start writing, and most importantly, how you have to think before writing. Okay, is it fine if I discuss your feedback in a Yes, group ma'am. rather than discussing personally? I hope you people won't mind. Ma'am, I won't mind. Yes, so I think mistakes are something that we need to be acceptable in public so that we don't repeat the mistakes in our future. And it is just a beginning of the session. Okay, believe me, after this session, you are going to write a very effective essay which is required. So I hope the screen is visible to you, right? Yes, ma'am. Okay, so Shawnki, as I've already discussed with you, Beta, whatever you have written, you have not mentioned the activity that you are doing, because I have asked you to write a para, and you have just finished off with few lines, right? But after after sharing the feedback, Shawnki has again come up with few more points. Anushri, you have winded up your points in just 2 lines, so again you have to elaborate it. Nikita, see, the point of view can be different. Like some of you have written that Sunday is the favorite day, or Monday is the favorite day, or Friday. Irrespective of that, I'm just trying to tell you whatever the day that you are choosing. Now, how you have to elaborate that particular day is what I'm more focusing on. So, Nikita, again, you have written the day which is favorite to you, but then you have not written what actually makes that day, why it is favorite to you, right? So that why is missing from that. Okay, Nairuti, coming to Nairuti, you have written that why it has made why that particular day has made favorite to you, but then again I would request you that you have mentioned extracurricular activities that you do on that day. So it would be better if you just mention those extracurricular activities, so that is going to develop, or that is going to change your 2-liner or 3-liner into a para. Okay, Ekta Bhagwat, you have written that we all know it's a holiday. So I don't think that holiday is going to make that day a favorite for you. So what you have done, उसको specific, my topic was very specific कि आपके लिए कौन सा दिन favorite है और वो क्यों है, ठीक है? और आपने उसको बहुत generalize बना दिया कि वो सबके लिए मतलब छुट्टी वाला दिन होता है. So लाइक उसको स्पेसिफिक से जनरल नहीं बनाना है, अगर हमारा टॉपिक बहुत स्पेसिफिक बात करने के लिए बोल रहा है. ये गलतियां होगी बेटा, आगे भी होगी ऐसे राइटिंग के टाइम पे भी. सो इसीलिए हमने एक शॉर्ट पैरा से शुरू किया है, सो दैट आई कैन टेल यू द बेसिक मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग एंड हाउ टू ओवरकम विद दैट. भूमिका ने तो जस्ट एक लाइन में फिनिश कर दिया है कि माय फेवरेट डे इज संडे, बट क्यों, व्हाई, आई हैव आस्क्ड यू, ठीक है? तो व्हाई इज नॉट बीन गिवन बाय यू. ओके, उदित हैज आंसर्ड. अच्छा, उदित ने पहले कुछ और लिखा था, ही रोट कि फ्राइडे इज माय फेवरेट डे. इज इट राइट No, उदित? ma'am. No, ma'am. ओके फाइन, सो वो मैम किसी मैंने और संडे का से था. लिखा था. आई थिंक वो किसी और का था. लेट मी जस्ट चेक फ्राइडे किसका था. ओके फाइन, एनीवेज दैट इज गोइंग टू कम. हाँ, सबने एक चीज बहुत कॉमन लिखी है यार, वी डू ऑल द एक्टिविटीज और द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट देन माय पॉइंट ओवर हियर इज बी स्पेसिफिक कि क्या एक्टिविटीज आप करते हो, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे टू कम इन अ वीक, राइट? सो वो एक्साइटमेंट वहां पे दिखना चाहिए आपकी राइटिंग में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और जब कोई मतलब रीडर उसको रीड कर रहा है तो वो एक्साइटमेंट उसको वहां पे दिखना चाहिए, बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट योर फेवरेट डे, राइट? तो समवेयर ये बहुत ही ड्राई साउंड कर रहा है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पाते हैं, वो एक रिलैक्स्ड वाला डे रहता है. बट देन व्हाट इज सो एक्साइटिंग अबाउट दैट डे? सो व्हाई इट इज फेवरेट मींस कि आपको अपने एक्साइटमेंट को वहां पे शो करना है. ओके, अगेन Gauri has written that Sunday we don't have any class, so we can just chill out with our friends on Saturday. Okay, fine, Gauri, but again, like apart from
this particular point, I want you to be little more elaborative with what makes that Saturday more exciting for you, right? Apart from just, doing a party with your friends. So that is just one activity. Now, what are the others that you're looking forward for? Okay, so Shreni was very much specific with her studies that she like Saturday because she don't take tensions on Saturday, and then she start doing her homework or her plans on Sunday. Okay, so that is what she was more specific about. But here again, Shreni, you have written that you have just made I back up, like, and mostly I back up my plans, like I have to do my written work of school and tuition, so I use Saturdays as my fun day without any tension. Okay, so you have been very specific with your studies, that's good. But again, apart from that, you can add few more excitement of Saturday, that why Saturday made you so excited. You have just written the post plan that you are making on that particular day. ओके अनीशा ने तो दो दो दिन अपने फेवरेट बता दिए हैं. हाँ, बट यू हैव एलैबोरेटेड वेल अनीशा. आपने अपनी एक्टिविटीज भी वहां पे मेंशन की है. ओके, कमिंग टू सौंदर्य. Okay, Saundarya, like you have mentioned that be it spending time with family or reading our favorite book, or all of us space Sunday as our relaxing day. Again, all of us. Why? Okay, so you don't have to be very, very general, I would say. You have to be specific because the topic was given to you was specific. आई होप आगे भी आप लोगों ने मोस्ट ऑफ ने ऐसे ही लिखा है, जैसे भागेश ने लिखा है कि संडे फ्राइडे उसका फेवरेट है बिकॉज ही वांटेड टू वॉच फर्स्ट डे फर्स्ट शो. All the movies got released on that day. So again, you can elaborate little bit about the movies, which movie you last saw, then what made you to love that movie, or why your inclinations are toward watching movie, why you are looking forward to uh, looking for Friday. So ये सब चीजें आप उसमें वहां पे लिख सकते हैं. Ma'am, यस, हाँ बोलिए बेटा. ma'am, have you received my answer? सॉरी. Ma'am, have you received my answer? Yeah, I'm coming to it beta. One by one I'm coming to it. Ma'am, I have a doubt. Okay. हाँ, डाउट्स में अभी लूंगी, एक मिनट. लेट मी जस्ट कंप्लीट विद एवरीबडी सो दैट कैसा है कि एक फाइनल ओवरव्यू मैं सबको दे पाऊं. अगेन यहाँ पे शिवानी गॉट टू मच रिलीजियस, सो वी हैव टू जस्ट सी कि अगर ये मतलब सिंपल टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, तो हम अपने इमोशंस वहाँ ला सकते हैं, रिलीजियस पॉइंट वहाँ पे ला सकते हैं. बट देन अगेन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द रीडर्स पर्सपेक्टिव कि क्या वो किसी के सेंटिमेंट्स को तो हर्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो अगेन वी हैव टू सी. यस, ये टॉपिक बहुत जनरल था, तो आप उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रख सकते हो, इमोशनल हो सकते हो. बट अब आगे के लिए मैं यही बताना चाह रही हूँ कि यहीं से ही हमको शुरुआत करना है, जहाँ हमको अपने इमोशंस को तो एक्सप्रेस करना है, हमारे एक्साइटमेंट्स को एक्सप्रेस करना है, बट देन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है. जनरल टॉपिक है तो जनरल लेके चलना है, और स्पेसिफिक टॉपिक है तो स्पेसिफिक होके चलना है. लाइक यहाँ पे व्हाई यू लाइक दैट डे, इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, तो उसको आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना है. ओके, पार्थ हैज रिटन. Okay, Parth, very well explained, but again, you have to add few more points that what you are actually doing on that particular day. Coming to Ishita. अब इशिता तो बिल्कुल अपने चाइल्डहुड डेज में चली गई, और उसके बाद नाउ शी इज रिलेटिंग इट. बट वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी पूछा है आपसे कि आपका कौन सा दिन मतलब फेवरेट है और वो क्यों है. सो वी डू नॉट हैव टू से कि पहले क्या था और अब क्या है. ठीक है, बिकॉज आई हैव जस्ट आस्क्ड यू टू राइट अ पैरा, नॉट अ essay.
ओके, अथर्व इंगले का आंसर बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम एवरीबडी, वेयर ही सेइंग कि मतलब एक पर्टिकुलर डे फिक्स करना बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मूड। तो ये बेटा ये शो करता है कि आप बहुत ही अनप्लान्ड है, ठीक है, सो समवेयर एंड बहुत मूडी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। प्रज्वल ने तो पूरा का पूरा नेट से कॉपी पेस्ट किया ऐसा लग रहा है, द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्रज्वल मेक श्योर कि आप नो अपने मैम। book में उसको लिख पाए। बेटा अभी इतने साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है, सो आई कैन मेक आउट। तो ट्राई करो कि एक्सेप्ट करो चीजों को और आगे के लिए इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। ओके, निकिता, ओके, निकिता ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट अगेन बेटा द एक्टिविटीज, ये एक बहुत कॉमन फीडबैक यार सबके लिए जा रहा है कि एक एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स आपने वहां पे मेंशन किया है। Okay, Avanti, you have written that generally people hate Mondays. We don't have to generalize things. यार दूसरे क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। The topic was very specific कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। Okay, पार्थ नौकरकर। Okay, again we are carefree of our responsibilities on that day. So what are the responsibilities? Again, you have to be very specific. You just cannot throw the words and just put them over there, right? So you have to be very precise in writing. Okay, coming to Ishan. Okay, at this age, I can understand that you are very much worried about your school and your homework. But yes, you can also include the extracurricular activities or the activities or your hobbies that you are taking on that particular day, which is the favorite one. Okay, so this is how you can elaborate. Now coming to Sanaya. Okay, again you have written like practicing our favorite hobbies. So what are those hobbies, right? So you have to write it from your perspective. Okay, coming to Prutha. Okay, very well explained, but again, as you have said that you have written there, one can set aside all the negativities of the past week aside and start afresh on this day. So somewhere it shows that you are not very energetic with that particular day to come in your life. So we have to be very 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 specific with the topic, ठीक है। एकदम ये हमारी एक्चुअली आदत होती है गोल गोल घुमाने की, राइट। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा हमको देखना है कि व्हेन आई हैव आस्क्ड यू टू राइट अ पैरा, तो पैरा में चीजें काफी स्पेसिफिक हो पाए, ठीक है। नाउ आई विल हेल्प यू कि इसको आप और कैसे अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है। सो माय फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज दैट यू शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंट्रोडक्शन क्या होता था, दैट द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू यू दैट व्हिच इज द फेवरेट डे फॉर यू, right? So it could be Sunday, Saturday, Monday, Friday, whatever you want to say, that will be the introductory line for you, because we are just writing a para, we are not writing an essay, right? So एक जो डे है वो आपको लिखना है, and then you have to mention कि why that day has become favorite to you. So you can just write that, for example, if I say Sunday is my favorite, so I can simply say that on Sunday I spend a lot of time with my family and with my friends, so it has become an favorite. It has become favorite day for me, right? So I've just given the day and the reason behind it, and then elaborating that particular point, I can simply say that I'm a football lover or I'm a cricket lover, so I watch cricket or football on that day with my dad or with my family members. Okay, or you can, if you are very fond of watching movies, so you can just write over there that I have been or I watch movies on that particular day with my family. So you can be very specific. Suppose if you love gardening or you love cooking, so you can specify those activities that you are doing, because you need to understand कि topic जो था वो बहुत स्पेसिफाई था आपके इस पर्सपेक्टिव से। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं
बाकी लोगों का क्या मानना है ये हमको वहां पे मेंशन नहीं करना है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आई थिंक एक कॉमन फीडबैक जो सबको जाता है, आप लोग काफी जनरलाइज हो गए थे वाइल राइटिंग, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. ओके, आई एम ओपन फॉर द डाउट्स. किसी को कुछ डाउट है? आई होप मैंने एक ओवरव्यू सबका लिया है. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द पीपीटी wherein I'll be sharing what is actually required. So let's start with the introduction. So in written ability, there could be 2-3 types which can be asked to you. Okay, so just to start with the introduction, whenever a written ability test is being asked to you, what you are supposed to write, you may be supposed to write a para, that is a paragraph or a passage. Okay, so whenever they are saying you that you have to write a passage, that means you have to write a paragraph, that we have already practiced. Okay, secondly, they may ask you to write an essay. So mostly in all the entrances, okay, when you are done with the aptitude entrance, the next part that is been mentioned as written ability test is basically talking about essay. Okay, they are not very much focused on passage. So you have to write a short essay, and wherein the other question comes to your mind कि मैम अगर short essays लिखने हैं तो क्या time permit, मतलब time कितना मिलेगा हमको, and what will be the word limit. So the time could be from 20 to 30 minutes which can be provided to you to write about it, and it will be typed one. Okay, so you have to type it. Now my request is that you should start writing on the notepad. ठीक है, notepad करके एक आपके लैपटॉप में ऑप्शन होता है. Don't write on word. Why I am telling you this? क्योंकि word में you have the option of grammar check and spelling check. So the software which is been designed for writing ability test, they do not have all these features of spelling check and grammar check, right? So it's always better that we start practicing on notepad where we do not have the option of spell check or grammatical check, right? Now second is ma'am, word limit kitna hona chahiye? So it should be between 500 to 600 word limits. ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो 500 to 600 वर्ड लिमिट्स होने चाहिए, ये आपके पैराग्राफ्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, राइट? सो हाउ द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ, और पैराग्राफ कैसे होंगे? सो मिनिमम 4 to maximum 5 paragraphs you can write in an essay, wherein your first paragraph will be talking about the introduction, that is the start of a particular topic, then talking about the supporting part, राइट? सपोर्टिंग आइडियाज जो कि मेन बॉडी होती है आपकी. सो सपोर्टिंग आइडियाज विद द इंट्रोडक्शन, एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन अबाउट दैट टॉपिक, कंक्लूजन अबाउट द सपोर्टिंग आइडिया एंड द इंट्रोडक्शन दैट यू हैव मेड. एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, कि ma'am. ये एक डाउट सबको रहता है कि मैम टाइम कितना मिलेगा, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, और एक्चुअली हमसे क्या पूछा गया है. ठीक है, सो प्रैक्टिस के लिए फ्रॉम टुडे इटसेल्फ स्टार्ट राइटिंग ऑन नोटपैड, एंड देन यू कैन शिफ्ट दिस मटेरियल टू द वर्ड, एंड यू कैन एक्चुअली चेक कि कहाँ पे पंक्चुएशन एरर हुआ है, कहाँ पे स्पेलिंग एरर हुआ है, कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हुआ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन योर माइंड इज कि टॉपिक्स कौन से आएंगे. ठीक है, सो टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर रीडर है, तो आपके लिए कोई भी टॉपिक सरप्राइजिंग नहीं होगा. ठीक है, सो मोस्टली द टॉपिक्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, और ये हम हमारे सेशंस में फ्रॉम डे 1, फ्रॉम डे मतलब the beginning of your admission, we have told you that this is going to be an important part of your entrance, right? तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि जो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में या करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स डिस्कस होंगे उससे बियॉन्ड कुछ भी जाने वाला है. सो अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं, कोई भी लेक्चर बैठने के बाद अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो टॉपिक इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो टॉपिक्स कैन बी फ्रॉम बिजनेस,
It could be from economics, it could be from finance, from social, political, religious, national, international, or sports. And that to be very specific with the current affairs कि अभी currently क्या चल रहा है. Okay, so कुछ भी वेग नहीं आने वाला है. डोंट वरी कि ऐसा कोई टॉपिक आ जाएगा जो शायद हमने कभी भी नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो आपके एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आने के चांसेस बहुत ही कम है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स? एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मीन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमको बहुत क्रिटिकली सोच के उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राइट अबाउट ब्लैक, or let's say write about dot, or write about a person, maybe I'm giving a xyz name, for example Rahul Dravid. Okay, so these are the abstract topic where a lot of critical thinking is required, and then only you can write about that topic, right? So abstract topics आपके examination में नहीं आएंगे, ये एक अच्छी बात है. But again, कुछ abstract topics को अगर आप practice कर लेंगे तो it will be good for you to relate your understanding और critical thinking हमको कैसे develop करना है. But अभी अगर जैसे exam पास में है और ज़्यादा time नहीं है, so I would tell you to focus on these areas जो कि अभी current में चल रहे हैं, जो current newses है. अगर आपको अभी रुक के एग्जाम देना है and you have lot of time and you really want to improve your written skills, ठीक है, अगर आप अपने writing skills को improve करना चाहते हैं over a period of time, I would recommend you to start writing about the abstract topics. That is going to develop your logical thinking, your critical thinking, your open-mindedness. Okay, so these all things are going to get improved by writing abstract topic, and these all things you can include in these topics as well, जो कि current affairs में है, right? And the good part about your examination is the topics which will be presented to you aren't very complex. मतलब जो topics आपको दिए जाएंगे वो बहुत complex नहीं होंगे. ऐसा नहीं होगा कि once in a while हमने कभी बहुत पहले पढ़ा था और अब उसके बारे में कुछ भी हम relate नहीं कर पा रहे. तो ऐसे topics बिल्कुल भी नहीं आएंगे. So don't worry about it. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक सिंपल टॉपिक करेंगे हम लोग. विल यू ट्राई? Yes. ताकि मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं कि सिंपल टॉपिक्स अगर आते हैं तो हाउ वी हैव टू प्रोसीड. अब आपको पूरा लिख के नहीं भेजना है मुझे जैसे आपने पैराग्राफ में लिखा था. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट राइट द बुलेट पॉइंट्स कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्या लिखने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू अ टॉपिक एज pros and cons of social networking website. I hope the topic is clear to all. Yes, ma'am. ठीक है, अब इस पे क्या लिखना है हमको? We have to write an essay. We don't have to write a paragraph. ठीक है, तो ऐसे में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, ये जरूरी है rather than कि उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. ठीक है, लैंग्वेज पे हम लोग बाद में बात करेंगे, बट देन की पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ये सब आइडियाज आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे. व्हाट यू थिंक, and you never know, this can be one of the topic of your written ability test. मैम हमें इसमें ये लिखना है कि उसके फायदे या नुकसान क्या है, कि मतलब बस ये लिखना है कि इसके फायदे क्या है, इसके मतलब मैम क्या किस टाइप से लिखना है? बेटा वही आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करेगा. टॉपिक किस पे है? प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. अगर ये टॉपिक आपको मिल गया है तो आप उसको कैसे लिखोगे ये मैं पहले आपसे जानना चाह रही हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प यू कि ये चीजें आपने मिस कर दी थी जो अब आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने. आई विल बी गिविंग यू सम 20 और टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगी कि ये 20 और टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो यू जस्ट गिव मी योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये टॉपिक आपको दिख रहा है तो हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दिस टॉपिक. मतलब शॉर्ट में कि आप क्या क्या उसमें लिखने वाले हैं. Ma'am, do we have to text you in the chat box or we can speak our mind over here?
You can speak also, but it would be better if you're writing it, because ultimately we are preparing for a written ability test, beta. We Okay, ma'am. are not actually preparing for oral, right? Okay, I got the answer from Avanti. She stated some pros about social networking sites. Good, Avanti. Okay, very good, Rishabh. The way you explained it. देखो यहाँ पे आपको प्रोज नहीं बताने हैं कि क्या क्या प्रोज है. आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप इसमें लिखने क्या वाले हो. ठीक है, प्रोज और कॉन्स तो एक लिखने वाले हो, बट उसके अलावा और क्या इंक्लूड करने वाले हो आप उसमें. Okay, Shivani, good start. Okay, Shanki, you asked with a question mark. So is it that you are confused कि मैम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Okay, so that was just your point of description, right? Okay, fine. नहीं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क के साथ लिखेंगे तो इट विल बी लाइक कि ओके, श्रेणी ने अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. चलिए, बाकी लोग ट्राई करते रहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो इनिशियली सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट the topic sentence. Topic sentence means a basic introduction about a particular topic. तो यहाँ पे topic जो है it is about social networking website. तो हमको एक बेसिकली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को, उसको भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डिस्कस करना है, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. तो इसमें आपका टॉपिक सेंटेंस या फिर ओपनिंग सेंटेंस कैसे होगा, इट विल बी दैट बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स. ओके, सो द सेंटेंस में गो लाइक दिस, दैट द बेनिफिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैव द पोटेंशियल ऑफ outweigh the dangers of such websites. Okay, so what we are doing, we are just talking about the potential of the danger that is talking about. तभी हम लोग आगे उसके advantages और disadvantages की बात कर पाएंगे. So we have to be very specific, जहाँ पे हम थोड़ा सा social networking website के बारे में बताएंगे. So I can say a intro about social networking website is what you can initially start with. Okay, now second is that you have to talk about the supporting sentences. तो जो आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट दी सपोर्टिंग सेंटेंसेस. अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे होंगे आपके, सपोर्टिंग सेंटेंसेस कुड बी कंसिस्ट ऑफ दी प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. मैं रब करूं सो दैट आई कैन राइट इट. Yes, ma'am. Okay. Fine. So supporting way, we can also talk about that while social networking site does not curb real life interaction with one's peers. So you are, when you are a student, you can talk about student. If you are a working professional, you can talk about your peers. Okay. So it also provides shy or introvert people or socially awkward people with a new avenue of communication. Okay. So these are things you can write. And you can also talk about that it is very easier to get connected with different relationships. Okay, wherein if we have lost a contact from a longer period, we can get connected through it. So these are things you can mention there, and then you can write about the pros and cons. Okay, so while writing pros and cons, which all points you have to keep in your mind is you have to just think the issues which are there. Okay, and the audience for whom you are talking about. So audience, you don't have to get restricted only to a student. If you are a student, don't get restricted to a business. If you are restricted to a business, it should be a open-ended like open-ended pros and cons, जहाँ पे आप सारे perspective को cover कर पाए. ठीक है, so even if you are a student, you can also talk about that what are the advantages for the business point of view or what are the disadvantages for the business point of view.
ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा थिंकिंग हमको ब्रॉड करना पड़ेगा. सो टू पॉइंट आउट सम प्रॉज जिनको हमको बहुत ही पॉइंटर फॉर्म में लिखना है. वी डू नॉट हैव टू इलेबोरेट इट. ठीक है, तो उसका इलेबोरेशन हो सकता है कि आप वो प्रॉज एंड कॉन्स के बाद दो या उसको पहले देके एंड देन यू राइट द पॉइंटर्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट मे गो. सो प्रॉज में यू कैन राइट दैट लार्ज नेटवर्क ऑफ सपोर्ट इज देयर because of that social media, right? Then great medium for introverts, as I've told you. So where you are not very specific, you have generalized it, right? So introvert, it can be for people who are looking forward for their business or for the studies or for any other purpose, right? Then create stronger presence in the working world. Now here in working world, I doesn't mean for the working professionals. I also mean for the students who are taking support of social media to improve their knowledge. Okay, so it makes a stronger presence over there. So that is what are the pros that we can discuss in short points. Then cons, of course, as we all know that it is related to internet. So we have read this word very frequently, that is cyberbullying. Okay, so even there are few cases which have been registered under it. तो जो लॉ वाले स्टूडेंट है वो शायद कुछ एग्जाम्पल से इसको डिस्क्राइब कर पाए साइबर बुलिंग को. ओके, then you can also talk about that it is suppressing the real life interaction. Matlab, since we are so much on the social media that we are losing that real time discussion with people. Now sharing personal information and photographs. So as we all know, on social media we are sharing all these things and we are being reading this that they may be misused. Okay, so that could be one of the cons. Are you getting my point? मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ये आप ऐसे उसको बुलेट पॉइंट लिख के एंड देन यू कैन डिस्क्राइब इट. तो इससे क्या होगा, जो रीडर रहेगा दैट विल बी नोइंग कि आप कितना अच्छे से चीजों को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं. ठीक है, वही अगर आप बहुत लेंदी सेंटेंसेस में लिखोगे विद डिफिकल्ट वर्ड्स तो हो सकता है कि रीडर को उतना इंटरेस्ट ना आए. तो इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए one point that you have to keep in your mind is you should always use bullet points. ठीक है, और bullet points को फिर हम उसको elaborate कर सकते हैं. So these bullet points can be at the beginning of your beginning of the sentence that I am talking about, the supporting sentences, or it could be at the end of the supporting sentence. ठीक है, तो वो दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है. And the last one will be your concluding sentence. अब आपने bullet points explain कर दिया, introduction एक proper दे दिया, अब last में आपको क्या करना है, you have to conclude. अब conclude करने के time पे one thing that you have to focus is you should not write words like I think or in my opinion. ठीक है, so these words should be avoided when you are giving conclusion, because you have written the entire paragraph on the basis of what the topic was talking about, and if you are giving your point of view at the end, that shows that you have become biased. ठीक है, तो एक चीज हमको ध्यान रखना है कि गुड राइटर विल बी अ पर्सन जो अनबायस्ड होके चीजों को एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, और अनबायस्ड आप तभी हो पाएंगे जब आप बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से वो पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करते हैं. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो यू विल फाइंड कि वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है और एक ही पॉइंट को लेके चलता है. ठीक है, तो हमको बायस्ड अप्रोच नहीं लेना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने बोला कि अ शार्प इंक्रीज इन साइबर बुलिंग is an unfortunate result of social networking, but I think sites like Facebook also give people the opportunity to build a larger network of support. ठीक है, तो इसमें मैंने अपना पॉइंट दिया है. ठीक है, सो ये आई थिंक अगर मैंने वहां से हटा भी दिया देन ऑल्सो माई सेंटेंस इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. तो अननेसेसरी इन वर्ड्स को आपको वहां पे इंक्लूड नहीं करना है जो हमारी टेंडेंसी होती है. ठीक है, बिकॉज यूजुअली व्हेन वी स्पीक तो ये हमारी आदत होती है कि किसी भी टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की. तो राइटिंग में यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि ये वर्ड्स आपके ना आए. इज दिस क्लियर? Yes. Okay,
So after once you are concluding, so conclusion mein you have to write that despite of writing all the pros and cons, what I feel is the positives are much on a higher side as compared to the negative ones. This shows कि आपका जो thinking process है वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ रिफ्लेक्ट करता है. तो कभी भी आपका कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है. और आपको ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं जहां पे एक राइटर आपसे उसके बारे में कोई नेगेटिव चीजें सुनने के लिए बैठा है. ठीक है. सो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि even though they have asked you to write the negative points, but in the conclusion you have to be very specific and saying that despite of all the negatives, these are the positives, and what I feel is the positives are dominating the negative portions. Is this clear? Yes. Shall I move on? आगे बढ़ेंगे. चलिए. Now, what are the skills which have been required at the time of writing is that your logic remains sound, as we have already discussed in the previous one, कि हम अपने logic अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कैसे हमने स्टेटमेंट को बाइफिकेट किया और किस तरीके से उसको रिलेट किया. ठीक है. क्रिस्प कंटेंट करने के लिए एज आई टोल्ड यू कैन यूज बुलेट पॉइंट्स. सो उससे क्या होता है कि रीडर जो है वो बोर नहीं होगा. ठीक है. और अगर आपने रीडर को बोर किया तो अननेसेसरी यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स. ठीक है. तो यू हैव टू सी कि वो रीडर आपका जो है वो एक्टिव रहे ड्यूरिंग दी एंटायर राइट, मतलब जो भी आपने राइट किया है उसको पूरा पढ़ते टाइम वो एक्टिव रहे. उसके लिए कुछ और चीजें जो आप कर सकते हो, एक तो मैंने बोला कि बुलेट पॉइंट्स यू कैन यूज. सेकेंडली यू कैन यूज फ्रेजेस और यू कैन यूज कोट्स. ठीक है. तो आज आप जाके ये कुछ प्रैक्टिस करिए. यू जस्ट आइडेंटिफाई जो 20 टॉपिक्स में देने वाली हूँ उसको आप इस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करिए. दैट इन द इंट्रोडक्शन यू मे स्टार्ट विद सम स्टेटिंग विद सम कोट्स एंड देन व्हाट आर द बुलेट पॉइंट्स दैट आई कैन मेक इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. कौन कौन से फ्रेजेस मैं वहां यूज कर सकती हूँ. तो ये सब चीजों को अगर आपने 20 टॉपिक्स में अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो 20 में से ही कहीं ना कहीं आपका रिटन एबिलिटी आने वाला है. Now the next is that you have to be very coherent. Coherent here means it is a very simple term. It means that you have to be very reasonable in writing. ठीक है. कॉम्पिटेंट लैंग्वेज होना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जो रीडर के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स हो जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज करता है. रीडर इज बिट कंफ्यूज वेदर यू आर साउंडिंग पॉजिटिव about that particular writing or you are sounding negative. Grammatical mistakes are not at all acceptable. So you have to be very thorough with your grammar. और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है. grammatical error means कि suppose if you have started taking some example of past, so you cannot move on directly to the future or the present. So ये कुछ चीजें हमको ध्यान रखना है कि जो टेंसेस है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वाइल राइटिंग. सो इफ यू आर गोइंग टू रीड न्यूज़पेपर्स तो उनमें आप ये चीज देखोगे कि अगर कोई पास्ट का डिस्क्रिप्शन हुआ है तो एक एंटायर पैराग्राफ जो है वो पहले पास्ट से कंप्लीट होगा एंड देन रिलेटिवली या तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या उसका कोई आर्ग्यूमेंट पॉइंट आउट करेंगे एंड देन दैट वुड बी related to the present example, right? So this is how you have to do. So paragraph कहाँ change करना है, कैसे change करना है, ये भी अभी in the coming जो हम कुछ और topics discuss करेंगे where I am going to tell you कि how to change the paragraphs. Then avoid spelling mistakes, as I've told you कि वहाँ पे spell check नहीं रहेगा. So you have to be very cautious while writing the spellings. Even ये भी आपके marks को deduct कर सकते हैं. So don't take it lightly. पंक्चुएशन एरर, अगेन फुल स्टॉप लगाना भूल गए, कॉमा लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगाना भूल गए, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट करेंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर नहीं बोलूंगी, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जो रिटन एबिलिटी होता है ये प्योरली कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है. आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एप्टी क्लियर कर लिया बट रिटन एबिलिटी में दे हैव नॉट गॉट सिलेक्टेड. ठीक है. तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. इज दिस क्लियर? ये इतना समझ में आया कि कौन कौन से स्किल्स आपके चेक होने वाले हैं? Yes. मैम. ओके, एक्सीलेंट.
Now let's move on to the next slide. Now these are few points that you have to keep in your mind. It is very simple, and I hope कि ये most of you, मतलब आप लोगों को पता ही है ये पॉइंट्स, कुछ नया मैं अगेन डिस्कस नहीं कर रही हूँ. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एक तो नॉलेज अबाउट द टॉपिक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टॉपिक कुछ और पूछ रहा है और आप कुछ और ही बात कर रहे हो. ठीक है. सो नॉलेज अबाउट द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर अनअवेयर ऑफ दैट टॉपिक यू विल हैव ऑप्शंस. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही टॉपिक दिया जाएगा और उसी पे लिखने के लिए. सो देयर विल बी अराउंड 3 to 4 और मैक्सिमम 5 टॉपिक्स, आउट ऑफ विच यू हैव टू चूज वन एंड देन यू हैव टू राइट. तो इतने ऑप्शंस मिलने के बाद रीडर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ऐसा टॉपिक चूज करो जिसके बारे में आपको नॉलेज है. ठीक है. तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है. यस, आप अपने अप्रोच को थोड़ा सा डिफरेंटली पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, बट देन टॉपिक से आपको भटकना नहीं है. ठीक है. Then open-mindedness, as I've told you, they do not want you to take a single side. That is the only reason कि जो मैंने पहला टॉपिक डिस्कस किया प्रॉज एंड कॉन्स. ठीक है. तो अगर किसी पर्सन को आपसे सिर्फ एक ही साइड पूछना होता तो वो सिर्फ शायद आपसे प्रॉज ही पूछता. एंड इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू विल फाइंड that reader is trying to ask you, or the examiner is trying to ask you both the sides and how you are managing both the sides. ठीक है. और कितने अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करते हो. सो दे आर चेकिंग योर ओपन माइंडेडनेस एंड योर क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Now next, it is more important that how you explain your articulate view in unbiased manner. As I've told you, this is only going to improve if you are reading multiple sources. अगर एक सोर्स से आपने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ा तो कहीं ना कहीं हमारा जो अप्रोच होता है वो अनबायस्ड से बायस्ड की तरफ मूव होने लगता है. Now, as I've told you that it is going to be including your introduction, body and conclusion. So before you start writing anything, you should think about it, and most importantly think about the keywords which you are going to put while writing. ठीक है. तो ये keywords बहुत important है. तो या तो हो सकता है कि लिखते लिखते हम वो keywords को भूल जाएं, तो आप उनको रफ पेपर पे कहीं पे लिख लो, so that you can use all the keywords which came to your mind in the beginning. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिगिनिंग में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं दिमाग में कि ऐसा भी लिखेंगे वैसा भी लिखेंगे, और जब लिखना शुरू करते हैं सो वी जस्ट, क्योंकि वो एक एग्जाम का प्रेशर होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो वो एग्जाम के प्रेशर को ओवरकम करने के लिए अगर इन की पॉइंट्स को आपने पहले से ही कहीं पे लिख लिया, सो इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि आगे कैसे मूव ऑन करना है. देन अगेन एज आई हैव सेड यू कि अनबायस्ड होना है, तो न्यूट्रल साइड मतलब ये बेसिकली आपके कंक्लूजन को फोकस करेगा कि आपको न्यूट्रल होके फाइनल एक अपना मतलब आउटकम देना है, और उसमें भी जो आपका राइटिंग होना चाहिए वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट जो हमने डिस्कस किया था प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट आपने प्रॉज समझाया, उसको एक्सप्लेन किया, फिर कौन समझाया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर सेकंड पैराग्राफ में फिर से कोई दूसरा प्रॉज. सो व्हेन यू आर राइटिंग प्रॉज तो वो पूरा एक साथ होना चाहिए. जब आप उसके डिसएडवांटेजेस बता रहे हो, कॉन्स बता रहे हो, तो वो एक साथ होना चाहिए. ठीक है. तो वो एक स्ट्रक्चर आपको मैनेज करते हुए, मेंटेन करते हुए यू हैव टू डू इट. Then most importantly, you have to concentrate on the content of the topic. As I've told you, content of the topic is only going to help you if you are writing the keywords. तो वो आपका बहुत हद तक उससे मैनेज हो जाता है. Then I have written a very beautiful line for you. इसको आप याद रखिए और दिमाग में एकदम बिठा लीजिए. जब भी लिखने बैठोगे तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो आपकी ओपनिंग होनी चाहिए वो बहुत ही वाइब्रेंट होनी चाहिए. इसीलिए इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव टोल्ड यू दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग कोट्स, यू कैन स्टार्ट विद फ्रेज. सो दिस इज हाउ इट कुड बी अ वाइब्रेंट ओपनिंग फॉर यू. Okay, you have to keep your content very crisp and informative. Okay, so crisp or informative के लिए I have told you you can use bullet points and then you can elaborate those bullet points, and at the end it should be a brilliant summary. Brilliant summary means ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इंट्रोडक्शन को ही फिर से रिपीट कर रहे हैं, या जो बॉडी में हमने चीजें लिखी है उसको ही हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. तो ब्रिलियंट समरी मीन्स इट शुड बी अ जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव टॉक्ड इन द एंटायर राइटिंग. ठीक है. वो चाहे इंट्रो हो या आपकी मेन बॉडी हो.
ठीक है, तो उसको पूरा एक समराइज करते आपको आना चाहिए. एंड वेरिन अगेन आई हैव टोल्ड यू ब्रिलियंट summary is only going to happen if you are taking a neutral side of it, where you will be more positive on expressing that particular point rather than again describing the negative of it in the conclusion. Is this clear? Hope I'm clear till now. Yes. ma'am. किसी को कुछ queries हैं? No. Shall I move forward? Yes, ma'am. Okay. Now let's come to the topics. ठीक है? These are 10 topics. And all the topics are related to the current affairs जो अभी current में चल रहा है. चलिए, इसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लासरूम. आप बताइए कौन सा टॉपिक डिस्कस करें हम? Corruption is the root cause of current economic and social woes in India. Okay, any other topic that you want me to discuss apart from this? Make in India ground realities. E-commerce. ग्राउंड रियलिटीज. ओके, ये तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं. इवन Make in नाउ India, आफ्टर ma'am. द पेंडेमिक, आफ्टर Make in India. Make in India. मैम ई कॉमर्स. देखो, एक मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी विद ऑल द टॉपिक्स. थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगी और आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये सेशन होने के बाद उसको एक ऐसे फॉर्म में लिखे. एंड इन केस वाइल राइटिंग दैट ऐसे अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम मी. My WhatsApp number is available to everyone. You can also write a short essay. You can send it to me. I will check and I will give my feedback to you. ठीक है, that is always there. But during this session मैं आपको एक बेसिक थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगी कि एक्चुअली क्या हमको करना चाहिए और कैसे उसको लिखना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये टॉपिक्स जो पूछे गए हैं वो किस फॉर्म में पूछे गए. सो मेक इन इंडिया हियर इट इज बेसिकली आज एज अ इकोनॉमिकल टॉपिक. ठीक है, तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में टॉपिक देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये मुझे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, ये मुझे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, इसमें मुझे कुछ पॉलिटिकल एंगल्स को एड्रेस करना है. तो ये सब थॉट प्रोसेस आपको इनिशियली ही आने चाहिए. तो इनिशियली अगर ये सारे थॉट प्रोसेस आते हैं, देन आई वुड से यू कि आपका राइटिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है एज कम्पेयर टू अदर्स. अगर आप बहुत वेग है कि मेक इन इंडिया को कैसे लिखूंगी, क्या डिस्क्राइब करूंगी, कैसे क्या करेंगे, कहीं कुछ पढ़ा होगा उसको रिलेट करना है, तो फिर चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है. ठीक है, अ गुड रीडर विल बी अ गुड राइटर. ये चीज आपको याद रखना है. आप एक अच्छे राइटर तभी बन सकते हो जब आप अच्छा रीड करते हो. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपका अनबायस्ड एटीट्यूड, ये सब चीजें चेक की जाती है बेटा. ठीक है, तो हमको ये चीज राइटिंग के टाइम पे भी ध्यान रखना है. एंड डोंट जस्ट थिंक कि एक बार लिख दिया और हो जाएगा. ठीक है, बहुत बार मतलब बहुत बार नहीं, मैक्सिमम टाइम ये फीडबैक मुझे, जैसे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स को भी मैंने ये सेशन करवाया था. सो आफ्टर द सेशन व्हेन स्टूडेंट्स हैव गॉन थ्रू देयर पर्सनल इंटरव्यू, द कॉमन आंसर दैट दे हैव गिवन मी कि मैम वो रिटन एबिलिटी सिर्फ वहीं तक नहीं था. इवन इन पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो द एग्जामिनर आस्क्ड मी कि रिटन एबिलिटी में ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक मिला था आपको और वो टॉपिक को आपने कैसे एक्सप्लेन किया था, और उस पर कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी हुए थे. सो यू हैव टू गेट रेडी विद ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो सिर्फ रिटन एबिलिटी वहां तक नहीं रहने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किए जा सकती है चीजें. तो हमको वो पर्सपेक्टिव को सोचते हुए लिखना है और उसको याद भी रखना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो तो सर हो गया अभी याद नहीं है. ठीक है, तो ये सब टाइप के एटीट्यूड आपके नहीं आने चाहिए व्हेन यू आर सिटिंग फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू. दैट इज नॉट at all expected from you, right? So make in India अगर आप लिख रहे हैं तो मेक इन इंडिया में बेसिकली इकोनॉमिकल पॉइंट आपको वहां पे देखना है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो चीजों को क्लब किया है. एक मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या ये ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और दूसरा इंडिया लीव्स टू सरपास चाइना, मतलब समवेयर चाइना इज अ कॉम्पिटिटर. तो इंडिया ऐसा क्या करे कि वो चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे. तो यहाँ पे दो टॉपिक्स को मैंने ऐड कर लिया है. हो सकता है जब आपसे पूछा जाए तो सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज पूछा जाए, या फिर हो सकता है सिर्फ आपको उसको कंपेयर
करने के लिए पूछा जाए चाइना से, ठीक है, या फिर दोनों भी पूछा जा सकता है. बट इन ऑल द केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टॉक इन द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिकल, और यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना है. ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस हैं तो वी आर वेरी इमोशनल और हम लोग चीजों को उस अकॉर्डिंग लेंगे, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट, ये सब वर्ड्स वहां पे नहीं आने चाहिए, ठीक है. यू शुड गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, ठीक है. तो ये सब वर्ड्स शो करते हैं कि आप कितने इमोशनल हो और कितना चीजों को आपने थॉरली रीड नहीं किया है. सो ग्राउंड रियलिटीज मतलब वी कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट इंडिया इज अ सर्विस सेक्टर. सो सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा. सो मे बी जो जीडीपी के जो नंबर्स आए हैं तो यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स अपने यूज कर सकते हो. स्टैटिस्टिक्स में in statistics you can just see कि जो जीडीपी के जो नंबर्स आए मतलब इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 16% to 25% of the GDP when Mr. Modi has introduced this concept of make in India, ठीक है. तो ये सब स्टैटिस्टिक्स, बट अगेन व्हाइल यूजिंग स्टैटिस्टिक्स यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप ऐसा कुछ नंबर कोट ना करो जो कि अनरियलिस्टिक है, ठीक है. थोड़ा इधर उधर होगा, शायद वो 16%, 15 हो या 17 हो, बट वो एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5% से 25% आ रहे हो, ठीक है. तो योर स्टैटिस्टिक्स फिगर शुड बी accurate with what is being given in the newspaper or the sources where you are taking it, ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स आप उसमें यूज कर सकते हैं. यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से ऑटोमोबाइल, यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर कि उसमें हम लोग मेक इन इंडिया में हाउ वी कैन डेवलप, ठीक है. यू कैन टॉक अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो इस तरीके से आप उसको पूरा रिलेट कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, राइट. तो इंट्रोडक्शन जो होगा वो बेसिकली आपका मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या पर्पस था, इस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं. एंड इन द बॉडी यू कैन टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, then with few examples you can relate it, and in conclusion you can definitely write the comparison with China and why this make in India is required. And even in this pandemic you might have heard a word from our PM, vocal for local. Okay, so vocal for local is again the concept which has come from make in India itself. तो ये कहीं ना कहीं चीजें आपसे वही रहेगी बट पूछने का तरीका बदल जाएगा. Are you getting this point? Yes. I hope I'm clear कि आपको लिखना कैसे है. Now words may vary, your ideas may vary, but जो लिखने का पैटर्न है वो आपका सेम रहेगा. Now next is rising population of India could be turned into an asset. Now as we all see rising population जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें लिया जा रहा है, बट हमको यहाँ पे किसको फोकस करना है, इट हैज टर्न्ड एज एसेट. तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको अपना नेगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करना है बिकॉज इट्स अ सोशल इशू. तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये नेगेटिव हो सकता था बट हम इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, ठीक है. दैट शोज कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वही कहीं ना कहीं नेगेटिव से शुरू हुआ है. ये कई बार मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, दैट इज व्हाई आई हैव पॉइंटेड इट आउट. तो वो एसेट्स कैसे हो सकता है, ठीक है. तो उनके सबके अगेन you can just write down the bullet points जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स को एड्रेस कर सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक आप बात कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की आप बात कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजों को वो एज अ एसेट में आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? Yes. Okay. Now let's move on to the next topic. Corruption is the root cause of current economic and social woes in India. Again, don't get emotional कि एक सड़ा सा छोटा सा एग्जांपल नहीं देना है कि हमारी जब गाड़ी पकड़ा जाती है तो हम एक छोटा सा ब्राइब देके एंड वी जस्ट गेट रिड ऑफ इट, ठीक है. तो ये सब पर्सनल एग्जांपल्स आपको नहीं देने हैं और पर्सनल एग्जांपल्स लेके आपको ये नहीं बोलना कि ये यहाँ से ही करप्शन शुरू हुआ है. ये यूजुअली होता है स्टूडेंट्स के साथ कि आई हैव सीन बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ HR एंड वी आल्सो यूज्ड टू टेक दीज एक्टिविटीज फॉर आवर सिलेक्शन प्रोसीजर. तो वहां पे हम लोग देखते थे कि बच्चे बहुत ही सिली एग्जांपल्स देते थे, लाइक करप्शन. ये बहुत पुराना टॉपिक है, कुछ भी नया नहीं है, बट ये एवरी नाउ एंड देन रिपीट होता रहता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट.
और उसमें यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है. सो आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि हो सकता है जिन्होंने वीजा अप्लाई किया हो या जिन्होंने पासपोर्ट का काम करवाया हो, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वहां लिखना शुरू कर देते कि पासपोर्ट निकालने के टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई और फिर मैंने उसको पैसे दे दिए तो मेरा काम बहुत स्मूथली हो गया. या कुछ लोगों ने एट दिस एज यू माइट हैव अप्लाइड फॉर द लाइसेंस. ठीक है, तो ये पर्सनल एग्जांपल्स वहां पे लिखना शुरू कर देते और वो करप्शन को वहां पे मेंशन करना शुरू कर देते. बट देन हियर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड द सोशल व्यूज. ओके, तो इसमें करंट सिनेरियो में यू कैन टॉक अबाउट जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट में जो हो रहा है, दैट यू कैन टॉक अबाउट जो पॉलिटिकल एंगल को लेके जा रहा है कहीं ना कहीं. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जो एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक कुछ MLAs हो गए या कुछ कॉर्पोरेटर्स हो गए जिनको मतलब जहाँ पे इनकम टैक्स रेड हुआ है. ठीक है, वो कहीं ना कहीं इट कैन बी अ cause of your corruption, right? Siddesh has written कचरा घोटाला. कचरा घोटाला, सिद्धेश, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट थिंक कि ये मतलब ये टॉपिक हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी 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 जनरलाइज, और इसको हमको बहुत ही व्हाट आई वुड से कि बहुत ही ध्यान से ये टॉपिक को हमको लिखना है. ठीक है, हम बहुत बायस्ड होके इसको नहीं लिख सकते. हम पूरा का पूरा उसमें अपना नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके जा सकते. वी कैन ओनली से दैट व्हाट आर द रूट कॉज एंड हाउ इट कैन बी क्योर्ड. तो रूट कॉज को आप कुछ बुलेट पॉइंट्स में आप उसको मेंशन करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका यहाँ पे जो राइटिंग होना चाहिए दैट शुड बी फोकस्ड ऑन द सोल्यूशन. क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी कोई डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स है सिस्टम में और वो हम सबको दिख रहा है, बट देन व्हाट आर द अल्टीमेट सॉल्यूशंस टू इट. ठीक है, तो सोल्यूशन बहुत ही कम लोग बोलते हैं, और वही सोल्यूशंस अगर आपने मार्क किया देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव मार्किंग एज कंपेयर टू अदर्स. एम आई क्लियर ऑन दिस कि टॉपिक को कैसे डील करना है? Yes. यहाँ पे आपको रूट कॉज एक्सप्लेन करते हुए आपको डायरेक्टली किस पे फोकस करना है, ऑन दी सॉल्यूशंस. ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस आपको बहुत बार न्यूज़पेपर्स में भी मिलेंगे, बहुत सारी मैगजीन्स में भी मिलेंगे, और कुछ सॉल्यूशंस आप अपने सजेशंस या अपने रिकमेंडेशंस जो आपने अपनी फैकल्टी से डिस्कस किया हो या पेरेंट्स से डिस्कस किया हो, उन पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. बट डोंट मेंशन अ इंडिविजुअल नेम कि आई टॉक्ड विद माय फादर एंड ही गेव मी दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Atharva said that shouldn't we just avoid political aspect? बेटा political aspect तो आएगा ही कहीं ना कहीं. Corruption is all about the system. ठीक है, and system starts with political front. तो हम politics को यहाँ पे avoid नहीं कर सकते बेटा. Is this clear? ठीक है, बट सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सब चीजें हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल. यस, हाँ बोलिए बेटा. Ma'am, what can we talk about social woes in India? अच्छा, social woes in India. Social woes, for example, if we are talking about let's say domestic violence, okay, and a case has been raised against कोर्ट, राइट, और उसमें फिर हम लोग कोई पर्टिकुलर पर्सन जस्टिस ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइब. ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स यू हैव टू फिगर आउट कि वो सोशली कैसे उन चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं. इज दिस क्लियर? वो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है आपका, या फिर कोई पेपर लीक होने का प्रोसेस हो सकता है. आपने देखा होगा पास्ट में ये सारी सोशल एक्टिविटीज भी हुई है. ठीक है, जहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व था, और वो करप्शन की वजह से कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, और फिर उसके सॉल्यूशंस भी निकल के आए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, ma'am, can we talk about crimes wherein the criminal went away by giving a bribe? Yes, of course we can also talk about it, like जो निर्भया केस हुआ. ठीक है, so that can be again, but then again वो justice तो मिला ना, तो we cannot purely say that कि ये सारे जो crimes होते हैं वो कहीं ना कहीं corruption में, yes it took a longer time, but again if we got a justice to it, तो वो हम कहीं ना कहीं corruption के उसमें नहीं डाल सकते हैं. Then it will be a contradictory point. Is this clear? Yes, ma'am. या फिर हमको ऐसा लग रहा है कि वो करप्शन की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, बट वी
आर जस्ट रीडिंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स और सोर्सेज की इसको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा ही आने वाले फ्यूचर में, ठीक है. सो वी कैन नॉट पॉइंट आउट कि बिकॉज ऑफ करप्शन दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. सो देयर मे बी अ सिस्टम फेलियर वी कैन से, or a delay in the system. Rather than saying failure of the system, I would say delay in the system, जिसकी वजह से justice मिलने में थोड़ा time लगता है. As we have said, seen the case of बच्चन सिंह, आपने सुना होगा 40 years का जो केस था, ठीक है. इट गॉट डिसाइडेड. जो लीगल वाले होंगे यार, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप ये सब चीजों को पढ़े प्लीज जाके, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग एग्जांपल्स फॉर दीज टॉपिक्स. आप इसमें गोल गोल घुमा नहीं सकते हो, ठीक है. रिटन एबिलिटी टेस्ट में अगर आपने गोल गोल घुमाया, बिलीव मी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपके साथ, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद एग्जांपल्स, विद स्टैटिस्टिक्स, विद बुलेट पॉइंट्स, ठीक है. और वो तभी आएंगे जब आपके पास एग्जांपल्स होंगे और आप अच्छे से रीड करते हैं चीजों को. इज दिस क्लियर? Yes. Okay. Yes. Now FDI in multi-brand, I don't think कि ये हमको डिस्कस करना चाहिए. कुछ टॉपिक्स में स्किप करते जा रही हूँ. Now let's move on to death penalty in India. Death penalty को और क्या नाम दिया जाता है? What is the other name to death penalty? Capital punishments. Capital punishment, yes. So this you can put in the introduction. So that is again going to give you a added point into it. Then in this, while explaining the death penalty in India, we can take the latest example of Nirbhaya case, where we have seen that after 8 years, after 8 years of that heinous crime, now we got the justice, right? Then again, I have explained you the Bachchan Singh example, so that you can again highlight over here. तो ये सब चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम रीड कर रहे हैं चीजों को. Now right to information. राइट टू इन्फॉर्मेशन में कौन से एग्जांपल्स हैं जो अभी करंट में है? The inclusion of the CJI's office under Yes, अभी जो RTI. अमेंडमेंट हुआ है ना, सो हियर बेसिकली ये टॉपिक पूछने का बहुत ही सीधा पर्पस है कि अभी जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, है ना, बेसिकली ऑन द रेम्यूनरेशन एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, राइट. सो कहीं ना कहीं वो आपसे इसमें पूछा गया है. So right to information, basically this will be purely asked because you have to write an essay. You don't have to write an entire history about it. So we need to understand कि जब हमको करंट का कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करंट में जो एग्जांपल्स हैं हम उनको रिलेट कर पाए. Now let's move on to the reservations. Reservations में कौन से लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं? This purely these topics I am taking from the point of view of legal students जो अभी बहुत जल्दी अपना रिटन एबिलिटी फेस करने वाले हैं इन कमिंग फ्यू डेज. सो आई पर्पसली टुक फ्यू लीगल रिलेटेड टॉपिक्स ओवर हियर. कोई बताएगा रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में? The latest 104th amendment and also the 103rd amendment जो हुआ है, वेरी गुड. सो इसके ऊपर जो EWS कोटा में जो 10% जो एडिशन हुआ है, ठीक है, उसके बारे में. एंड देन उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में आई हैव सर्च्ड फ्रॉम द इंटरनेट, जहाँ पे मुझे बीके पवित्र एंड मुकेश सिंह जो कि 2020 में उनको अलाउ किया गया रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, एंड फॉर देयर प्रमोशन. तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप वहाँ पे पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं. दिस आई ऑल्सो टुक फ्रॉम द इंटरनेट. तो आप भी इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं एंड यू कैन मेंशन इन योर राइटिंग, ठीक है. कोविड-19 एज वी ऑल नो, ये तो एक टॉपिक है जो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव टॉपिक हमेशा आपके लिए रहेगा जहाँ पे आपसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है. तो कोविड-19 में आर दे रियली वांटिंग यू टू राइट द स्टैटिस्टिक्स कि अभी तक कितने केसेस हैं, कितने डेथ रेशियो हुआ है, देन किस स्पीड से बढ़ रहा है? डू यू रियली थिंक दैट द रीडर इज ट्राइंग टू आस्क यू ऑल दिस थिंग्स? क्या लिखना है बेसिकली इसमें हमको? What do you think? It's after effects on. Yes, It's after effects. After effects बेटा बाद में लिखेंगे. शुरू कैसे With social effects and where it originated and how it has affected everyone globally. हाँ, अब इसमें देखो कुछ लोग जो इमोशनल होंगे वो पूरा चाइना का कहानी लिखेंगे. वी कैन जस्ट राइट वन लाइनर, ठीक है. तो पूरी कहानी नहीं लिखनी है हमको. अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ एसे जहाँ पे आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए,
एक स्टार्ट एक काफी अच्छा होना चाहिए और उसके बाद फिर आपके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए वहां पे, ठीक है, इन द बॉडी, एंड देन not a dry conclusion but a overall vibrant conclusion that you have to make, ठीक है। तो उसको करने के लिए just write down few points जो यहाँ पे कोरोना के लिए आपको लिखना चाहिए। I have searched a lot and then I have found out these points and I'm pretty sure जब ये टॉपिक आएगा तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ। So what you can write over here is the ongoing जो novel coronavirus pandemic है, उसके जो इश्यूज हैं, ठीक है, तो इश्यूज को आप वहां पे एड्रेस कर सकते हैं। तो इश्यूज में फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन टॉक अबाउट द सफरिंग ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, तो हम यहाँ पे सफरिंग की बात करेंगे और कौन से सेक्शन की बात करेंगे, वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। सो वल्नरेबल सेक्शंस में कौन कौन आते हैं, सच एज द माइग्रेंट लेबरर्स एंड द डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर द वन हु गॉट इफेक्टेड अ लॉट आफ्टर दिस पेंडेमिक, ठीक है, तो उनके बारे में वी कैन टॉक अबाउट। सो वल्नरेबल सेक्शन, एम आई क्लियर टू दिस? Yes. ओके फाइन। तो इसके बाद फिर जो एक बर्डन आ गया है हेल्थ केयर सेक्टर पे, वो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर पे बर्डन आने का मतलब है कि फाइट फॉर और अ रेस, रादर देन सेइंग अ फाइट, इट इज अ रेस फॉर अ रेस टू क्रिएट अ वैक्सीन एंड देन टू पेटेंट इट, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। Then how the state are overcoming with the burden of the healthcare, individually how they are trying at their level best, ठीक है। Don't get emotional if you are a Maharashtra candidate, don't say कि मुंबई में बहुत केसेस हो रहे हैं and because of government का failure है, ये है वो है, ठीक है, तो इतना हमको नेगेटिव नहीं जाना है। You need to understand all these things. Are you clear with this? मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? Yes. ओके इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि 2006 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत बार ऋषि सर ने और शुभम सर ने भी आपके साथ डिस्कस किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर मतलब बहुत सारी चीजों को लाया गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो ऑनगोइंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? How your writing can be more effective as compared to the generalized which we were actually thinking of? Yes. Yes, ma'am. Okay. Fine. So shall I move to the next slide? Yes, ma'am. Now let's move on to the next slide. Again, last 10 topics, ये again बहुत generalized topics हैं। आधार, then बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, law should be an instrument of social change, browsing at workplace, then social activism is necessary for survival of democratic society, then US China trade war, of course ये बहुत बार डिस्कस हुआ होगा आपके साथ, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन ये भी बहुत बार डिस्कस किया है। और ये जो स्लो डाउन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, एक तो ग्लोबल स्लो डाउन मैंने लिखा है और दूसरा जो है वो मैंने कहीं ना कहीं कर्बिंग द स्लो डाउन की बात की है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू कर्ब द स्लो डाउन। तो अगर सिर्फ आपको ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी पूछा गया है तो भी आप कहीं ना कहीं उसको कैसे कर्ब किया जा सकता है या कैसे उस मतलब उस स्लो डाउन से बाहर निकला जा सकता है, उसके लिए यू कैन जस्ट मेंशन द मर्जिंग ऑफ बैंक्स एंड प्राइवेटाइजेशन व्हिच गवर्नमेंट इज डूइंग दीज डेज, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जब तक आप रीड नहीं करेंगे नहीं लिख पाएंगे बेटा, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है। देन हिस्ट्री एंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370, ये भी एन नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस हो चुका है आपके साथ क्लास में। ट्रिपल तलाक बहुत बार डिस्कस हो चुका है। सो आई थिंक यही कुछ टॉपिक्स है जहां से आपके रिटन एबिलिटी पूछा जा सकता है। इससे आउट ऑफ द बॉक्स मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जाएगा, ठीक है। करंटली हो सकता है नेपोटिज्म पे वो पूछ ले, बट वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्पेसिफिक है और वो उतना आपको इन डिटेल मतलब रीडिंग वो नहीं मानेंगे, और उसमें भी कैसा होता है बहुत बायस्ड अप्रोच होता है। तो वो टॉपिक ऐसा देंगे आपको जहाँ पे आपको दोनों साइड लेना है और आपको पॉजिटिव उसके ज्यादा अच्छे से बताना है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव वंस। इज दिस क्लियर?
ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल तलाक में भी अगर आप देखेंगे तो गुड और बैड डिसीजन उन्होंने बोला है. तो ऑफ कोर्स यू कैन पॉइंट आउट द बैड डिसीजन, बट यू डू नॉट हैव टू एक्सट्रीमली सपोर्ट इट. ठीक है, तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है बीइंग अ स्टूडेंट. इज दिस क्लियर? Yes. Okay, so before I wind up, एक क्विक हम लोग इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे that we can just go through. तो इम्पोर्टेंट टिप्स में द फर्स्ट वन इज डोंट यूज jargons, मतलब हैवी वर्ड्स नहीं यूज करने. यूज सिंपल वर्ड्स सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड योर ओपिनियन, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, देन बी इंटरेस्टिंग वाइल राइटिंग. आप खुद ही अगर अपने आप को बोर्ड मतलब साउंड करेंगे कि यार ये लिखना है, जस्ट एक एक्सरसाइज है, करके खत्म करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेगी. सो यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी इंटरेस्टिंग वाइल राइटिंग. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको वो पहला टॉपिक दिया था कि विच डे ऑफ द वीक एंड व्हाई, तो उसमें आपका जो एक्साइटमेंट था वो दिखना चाहिए था कि ये दिन मुझे पसंद है और ये मेरा एक्साइटमेंट है टुवर्ड दिस पर्टिकुलर डे. ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट आपका राइटिंग के टाइम पे दिखना चाहिए. डोंट बी वर्बोज. वर्बोज इज बेसिकली कि रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, या फिर आप उसमें जैसे मैंने आपको बोला सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स आप उसमें यूज कर सकते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में कंसाइज नहीं हो पाते हैं, प्रिसाइज नहीं हो पाते. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज वाइल राइटिंग. इसीलिए मैंने बोला बुलेट पॉइंट्स अगर लिखोगे तो काफी अच्छे से आप चीजों को डिस्प्ले कर पाएंगे. ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स में आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कीवर्ड्स बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, then keep up with the current affairs, practice a lot as we have been telling you since you have joined कि न्यूज़पेपर रीड करो. और हम लोग बहुत सारे सेशंस भी इसलिए बहुत रेगुलरली करवा रहे हैं सो दैट वो एक इंटरेस्ट आपका बना रहे करंट अफेयर्स में. ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ना है, एंड हियर आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके इंटरेस्ट के नहीं है. ठीक है, जो इंटरेस्ट के हैं वो तो ऑटोमेटिकली पहली बार पढ़ के ही समझ में आ जाता है, बट यू नेवर नो कि जब आपके पास टॉपिक आएगा तो वो आपके इंटरेस्ट का आएगा या आउट ऑफ द इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, तो हमको सारे टॉपिक्स को, सारे एरियाज को कवर करना है. ऐसा नहीं है कि मुझे तो सिर्फ इकोनॉमिकल न्यूज़ेस पसंद है तो आई विल जस्ट डोंट रीड द पॉलिटिकल और आई वांट कंसंट्रेट ऑन द बिजनेस न्यूज़ेस. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको एक मतलब इक्वल सबको लेके और एक अंडरस्टैंडिंग सबके लिए डेवलप करना है. कीप योर फोकस ऑन राइटिंग, मतलब वाइल राइटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डाइवर्ट हो गए फ्रॉम द टॉपिक और जो मेन टॉपिक था उससे अलग हटके हमने कुछ और वहां पे लिख दिया. ठीक है, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. एंड द लास्ट वन इज डिस्कशन विल हेल्प यू टू थिंक एंड अंडरस्टैंड अबाउट अदर्स पर्सपेक्टिव एज वेल. इसीलिए हम लोग करंट अफेयर्स के न सिर्फ मटेरियल देते हैं आपको, बट फैकल्टी से डिस्कशन करवाते हैं. दिस इज प्रिटी सिंपल कि आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव भी समझ में आने चाहिए और उन पर्सपेक्टिव को लेके इसीलिए डिफरेंट सोर्सेज आपको रीड करने के लिए बोला गया है, सो दैट एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को ना देखें, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें और उनको रिलेट करके आप लिखना शुरू करो. ठीक है, वो कहीं ना कहीं शो करेगा आपका ओपन माइंडेडनेस, आपका क्रिटिकल रीजनिंग और आपका लॉजिक जो आप पुट फॉरवर्ड कर रहे हो व्हाइल रीडिंग. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड, you cannot be a good writer if you are not a good reader. ठीक है, so start reading a lot, start concentrating on reading the aspects which are not of your interest. ठीक है, तो आज उनको फिगर आउट करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है आउट ऑफ 20 जो मैंने दिए हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपके इंटरेस्ट के नहीं है, उनको पहले करो, और जो आपके इंटरेस्ट के हैं उनको आप बाद में करिए. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes. So I think that's all from my end. If you have any queries, you can please ask before I wind up the session. Okay, so no queries. Any queries you have, you can unmute your mic and you can ask me. Definitely, Parth, I'm going to share this PPT with you. With all the students, I will be sharing on your WhatsApp group. Don't worry. और इस पीपीटी में मैंने एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है ओरली, बट जस्ट टू गिव यू आइडिया कि एक टॉपिक के बारे में कैसे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे मेक इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा एक आपको लिख के भी बताया है
कि कैसे आप पॉइंटर्स को लिख सकते हो. इज दिस क्लियर? ठीक है. एंड माई रिक्वेस्ट इज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल, बट गूगल में अगेन सी कि जहां से आप डेटा उठा रहे हो क्या वो रेलिवेंट सोर्स है. ठीक है. तो कई बार ऐसा होगा कि आप अननेसेसरी ऐसे साइट पे फंस गए हो जहां पे कि एक बहुत बायस्ड अप्रोच लेके उस पर्टिकुलर टॉपिक को बताया गया है एंड यू टुक द डेटा फ्रॉम देयर. ठीक है. सो while selecting the topic and while selecting the pointers from the Google, you have to be very very cautious. So I always suggest students ki read newspapers and try to understand the perspective of the author who are writing it, rather than just taking one source to read about that topic. Is this clear? Yes. Yes, ma'am. Any other queries? Anything that you want to ask? आई होप ये सेशन करने के बाद अब हमको समझ में आया होगा कि एक्चुअली रिटन एबिलिटी में क्या होता है जो अभी तक हम सोच रहे थे. तो वो बहुत डिफरेंट है जो आप सोचते हो. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइन दैट वी हैव डिस्कस्ड. जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अब अपना राइटिंग इंप्रूव करो. यू कैन स्टार्ट विद अ पैराग्राफ जो शुरू में हमने किया था. ठीक है. एक एक पैराग्राफ से शुरू करो. पैराग्राफ में देखो कि क्या आप बहुत ज्यादा तो किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं जो अननेसेसरी रिक्वायर्ड नहीं है, उसको शॉर्टन करने की कोशिश करो एंड देन मूव ऑन टू द एसे. ठीक है. सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स. अगर आप सीधा ऐसे पे जंप करोगे तो बहुत बार बहुत सारी मिस्टेक्स आप मतलब रियलाइज ही नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो आई थिंक जो अभी सिम्बॉयसिस लिखने वाले हैं उनके पास भी सफिशिएंट टाइम है टू प्रैक्टिस ऑल दिस 20 टॉपिक्स. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज या कोई नया टॉपिक इफ यू कम अक्रॉस एंड यू हैव अ डाउट कि मैम क्या ये टॉपिक आ सकता है, आई एम हैप्पी टू एड्रेस दोज क्वेरीज. ठीक है. बट बेटा डिस्कस करते रहो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहो, क्योंकि सिर्फ सुन के नहीं होगा. रिटन एबिलिटी जो है ये 2 वे चलना चाहिए. इज दिस क्लियर? Yes. That's all from Yes, my ma'am. end. I hope कि आप लोग ये 20 टॉपिक्स लिखेंगे अच्छे से और उसको प्रैक्टिस करेंगे बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल रिटन एबिलिटी. ठीक है. और रिटन एबिलिटी में अपार्ट फ्रॉम ऐसे देर आर सम डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो. मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दूंगी बिफोर आई वाइंड अप द सेशन. अपार्ट फ्रॉम ऐसे राइटिंग एक पार्ट है, बट ऐसे राइटिंग के अलावा कई बार व्हेन यू विल टेक अ एडमिशन इन सम कॉलेज और व्हेन यू आर गोइंग टू get a corporate experience, a practical experience in your life, तब भी writing बहुत important रहेगा. ठीक है. You have to submit the reports, you have to submit the assignments, you have to make PowerPoint presentations, you have to give the like a feedback or a introduction about some point which is being discussed. तो ये सब पॉइंट्स आपके लाइफ में चलने वाले हैं जहाँ पे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है. ठीक है. सो डोंट गेट मतलब ऐसा नहीं कि बस ये एक रिटन एबिलिटी टेस्ट निकाल लूँ उसके बाद हो गया. नहीं, इट इज जस्ट अ स्टार्ट. यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना. राइट. और इसके अलावा इन फ्यूचर आप देखेंगे कि राइटिंग स्किल्स में भी चेक्ड इन डिफरेंट वेज. दे मे आस्क यू टू राइट ईमेल्स आपसे मतलब पूछ सकते हैं वो लिखना, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि how you are writing a particular report, a particular assignment. Yes, Akansha, it is specifically for that, but just I am telling you कि ये writing ability और भी आगे कैसे आपकी लाइफ में काम आने वाला है. ठीक है. It's not just one exam that we are cracking, but this is a skill that we are developing at this point in time, which is going to help you in your entire life. Is this clear? Again, Yes. राइटिंग का ही पार्ट है जो अब हमको स्टार्ट करना है, इम्प्रूव करना. So that's all from my end. In case if you have any queries, I am always available on my WhatsApp number. You can ask me the doubts over there. Thank you so much and have a wonderful day.